Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Brain Root series, and here is the book AI Artificial Intelligence. Children, today we are going to start with section B, which is coding, and here comes your fourth chapter, which is Fun with Scratch 3. So here we are going to learn about Scratch 3. So how to start Scratch 3 and what are the components of the Scratch 3 window. We are also going to learn about looks block, event block, control blocks, adding a new sprite from library, changing the appearance of sprite, adding a new backdrop, making a sprite say something, how to make duplicate copy of sprite, and working with true sprites, changing the sprite position and change the pen shade. So these topics we are going to cover in this chapter. So here let's start with Scratch 3. So it is a powerful tool for introducing young learners to programming and computing, thinking in a fun and engaging way. So Scratch 3 क्या है? ये एक programming language है, means it is a powerful tool जो आपको क्या करता है, हेल्प करता है प्रोग्रामिंग सीखने में, and it also helps you to think in a fun and engaging way. Scratch is a free software and it is a simple block based coding language. ये block based coding language है, ये free to download है, and let's you create your own interactive stories, animations, games, music and art. तो स्क्रैच में हम ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. हम अपनी खुद की स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिक और आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं. इट्स ईजी टू लर्न एंड यूज़. ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, ईजी टू यूज़ एंड लर्न है. In Scratch, we can simply drag and drop the blocks to create our code. अपने कोड को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है? Simply blocks को drag and drop करना होता है. That is why it is often referred to as block-based coding. इसलिए इसे block-based coding भी कहा जाता है. Let's start Scratch. So to start Scratch, you have to follow these steps. First, you have to click on the Start button. Then you have to select Scratch 3, and then the Scratch window will appear. So this is Scratch 3, this you have to select, and after that this window will appear in front of you, and here you can see there are different components of Scratch 3 window. So here first comes the code tab जिसमें codes हैं, आप देख सकते हो. Next comes the sound tab जिसमें आप sound set कर सकते हो. फिर code tab के जस्ट बगल में आता है costume tab जिसमें आप costumes change कर सकते हैं. Next here you can see add extension option is here. दिस इज अ स्क्रिप्ट एरिया जहाँ पे आप जो इन टैब्स को ड्रैग करके लाएंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे. दिस इज द एरिया वेयर द स्प्राइट मूव्स. ये वो एरिया जहाँ पे स्प्राइट मूव करता है. ग्रीन फ्लैग इज फॉर गो एंड रेड बटन इज फॉर स्टॉप. मीन्स आपको अपने प्रोग्राम को रन करना है तो आप ग्रीन फ्लैग को प्रेस करेंगे, और अगर स्टॉप करना है तो रेड पे प्रेस करना है. दिस इज अ स्प्राइट जो ये सारे काम करता है कोडिंग वगैरह के, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड योर स्टेज. Here you can see sprite info pane. This is the sprite info pane. From here you can add more sprites to your program. Now let's understand some important components of Scratch window. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ important components के बारे में Scratch window के. So here first comes the sprite. Sprite वो है जो काम को करता है, जो भी हम कोडिंग वगैरह करते हैं वो सारे काम वही करके दिखाता है हमें. सो स्प्राइट्स आर द स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर. ये स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर है या ऑब्जेक्ट हैं जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्शंस को, प्रोजेक्ट्स को स्क्रैच में. बहुत सारे यहाँ पे इनबिल्ट आपको स्प्राइट्स मिलेंगे, एंड यहाँ पे जो कैट है वो डिफॉल्ट स्प्राइट है. फिर आता है स्टेज. स्टेज क्या है? वो मेन वर्किंग एरिया है जहाँ पे ये जो स्प्राइट्स हैं वर्क करते हैं, एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो भी हम इन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग. इट डिस्प्लेज योर क्रिएशन. ये जो स्टेज है ये हमारे क्रिएशन को डिस्प्ले करता है, एंड यू कैन सी योर स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशंस हियर. नेक्स्ट कम्स कोड टैब. सो कोड टैब क्या है? ये है दिस इज अ स्क्रिप्ट एंड अ सेट ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द स्प्राइट टू डू स्पेसिफिक टास्क. सो ये यहाँ पे से आप जो स्क्रिप्ट को ले सकते हैं और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं स्प्राइट को.
ईच इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कमांड, जितने भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें कमांड कहा जाता है। एंड इसमें आपको बहुत सारे ब्लॉक पैनल्स मिलेंगे, ब्लॉक पैलेट्स मिलेंगे, जो आपको हेल्प करते हैं स्क्रिप्ट को लिखने में। First comes block panel. So the block panel area lists the 9 categories of blocks. अगर आप block panel में जाएंगे तो आपको 9 categories दिखेंगे blocks के। पहले आता है motion block, looks block, sound block, event block, control block, sensing block, operators, variables and my blocks. So these blocks will be available in the blocks panel and रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आर ग्रुप टुगेदर। इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए कि मोशन ब्लॉक में क्या होगा, या लुक्स ब्लॉक में आप जाएंगे तो क्या होगा, या साउंड ब्लॉक में हैं आप तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल द मूवमेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आर लिस्टेड वेयर वी सी द मोशन ब्लॉक। सो मूवमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आपको मोशन ब्लॉक में मिलेंगे। सो फर्स्ट कम्स मोशन ब्लॉक। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट, स्प्राइट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और ये जो ब्लॉक्स हैं ये डार्क ब्लू कलर के होते हैं और इसमें टोटल 18 ब्लॉक्स आपको मिलेंगे। फिर आता है आपका लुक्स ब्लॉक। लुक्स ब्लॉक जो होता है ये आपका जो भी स्प्राइट है उसके अपीयरेंस को देखता है। ये जो ब्लॉक है वो पर्पल कलर के होते हैं एंड इसमें टोटल 20 ब्लॉक्स होते हैं। नेक्स्ट कम्स साउंड ब्लॉक। सो साउंड ब्लॉक जो है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है साउंड के फंक्शंस को। एंड ये जो ब्लॉक है ये डार्क पिंक कलर के हैं एंड इसमें आपको टोटल 9 ब्लॉक्स मिलेंगे। फिर आते हैं आपके इवेंट्स ब्लॉक। इवेंट ब्लॉक क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, मैनेज करते हैं इवेंट्स को विच ट्रिगर द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट, जो स्प्राइट के मूवमेंट को ट्रिगर करता है। ये जो ब्लॉक्स हैं ये येलो कलर के होते हैं और इसमें टोटल 8 ब्लॉक्स आपको मिलेंगे। फिर आता है कंट्रोल। सो कंट्रोल ब्लॉक जो होता है स्प्राइट में इसे यूज किया जाता है, स्क्रिप्ट को कंट्रोल करने के काम आता है ये किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में। ये जो ब्लॉक्स हैं ये एम्बर कलर के होते हैं एंड इसमें टोटल आपको 11 ब्लॉक्स मिलेंगे। नेक्स्ट कम्स सेंसिंग ब्लॉक। सेंसिंग ब्लॉक जो है स्क्रैच में उसे यूज किया जाता है सेंस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग जो भी फैक्टर्स है प्रोजेक्ट के। ये जो ब्लॉक्स हैं ये लाइट ब्लू या फिर सैन कलर के होते हैं और इसमें टोटल 18 ब्लॉक्स होते हैं। फिर है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर ब्लॉक जो है ये परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मींस मैथ से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशंस ऑपरेटर ब्लॉक्स करते हैं, या फिर स्ट्रिंग हैंडलिंग का काम भी ये करते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं और इसमें टोटल 18 ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर। फिर आता है वेरिएबल ब्लॉक। वेरिएबल ब्लॉक जो है स्क्रैच में इसे यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए डेटा को। ये जो ब्लॉक्स हैं ये ऑरेंज कलर के होते हैं एंड इसमें आपको टोटल 5 ब्लॉक्स मिलेंगे। देयर इज अ सब कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स। यहाँ पे आपको सब कैटेगरी में मिलेगा ब्लॉक्स का इन वेरिएबल ब्लॉक्स के अंदर, जिसे हम लिस्ट ब्लॉक कहते हैं। लिस्ट ब्लॉक जो है यूज किए जाते हैं मैनिपुलेट करने के लिए अलग अलग वैल्यूज को स्क्रैच में। ये जो ब्लॉक्स हैं ये डार्क रेड कलर के होते हैं एंड इसके अंदर आपको 12 ब्लॉक्स मिलेंगे। सो इन टोटल आपको यहाँ पे टोटल 17 ब्लॉक्स मिलेंगे, 5 वेरिएबल वाले और 12 जो है आपके लिस्ट वाले। सो देर आर टोटल 17 ब्लॉक्स दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरी एंड द टाइटल इज वेरिएबल ब्लॉक। नेक्स्ट कम्स माई ब्लॉक। माई ब्लॉक इन स्क्रैच इज यूज टू होल्ड द प्रोसीजर। ये जो ब्लॉक है इसे यूज किया जाता है प्रोसीजर को होल्ड करने के लिए फॉर सेलेक्टेड स्प्राइट के लिए। ये जो ब्लॉक्स है ये पिंक कलर के होते हैं एंड इसमें आपको मेक अ ब्लॉक ऑप्शन बटन दिखाई देगा विच इज यूज्ड और कस्टमाइज्ड ब्लॉक एंड इट कैन बी क्रिएटेड लाइक दिस। सो दीज आर द डिफरेंट ब्लॉक्स अंडर दिस कैटेगरी। अनदर वन कम्स ब्लॉक्स पैलेट। ब्लॉक पैलेट क्या है, इसमें आपको सेट ऑफ ब्लॉक्स दिखाई देंगे जिससे यूज किया जाता है स्प्राइट को प्रोग्राम करने के लिए, एक्शंस गिव एक्शंस एक्शन देने के लिए। जितने भी ब्लॉक हैं इन्हें यूज किया जाता है परफॉर्म करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर टास्क को, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। बाय कनेक्टिंग ब्लॉक्स विथ ईच अदर, एक साथ ब्लॉक्स को कनेक्ट करके जस्ट लाइक द जिक्सॉ पजल, जैसे हम जिक्सॉ पजल खेलते हैं ना वैसे यहाँ पे ब्लॉक्स को कनेक्ट किया जाता है एंड इसकी वजह से ही जो स्क्रिप्ट है वो बन जाता है। नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू कॉस्ट्यूम्स टैब। अब हम आएंगे कॉस्ट्यूम टैब्स में जहाँ पे हम डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। So it is used for creating and editing visual appearance of the
स्प्राइट। स्प्राइट का जो विजुअल अपीयरेंस है जो हमें दिखाई दे रहा है उसे जो है एडिट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिखाई दे देंगी कैट की। हियर यू फाइंड टू इमेजेस ऑफ द कैट कॉल्ड कॉस्ट्यूम। यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिखेंगे जिसे हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। ये जो कॉस्ट्यूम है ये आपको हेल्प करता है चेंज करने में आपके स्प्राइट के अपीयरेंस को जब आपका प्रोग्राम चल रहा हो, so that you can give it facial expression and body movement, ताकि आप अपने स्प्राइट को facial expressions और body movement दे सके। Here you can see this is your sprite and how it's working. Next comes sounds tab. It allows you to record or import sound files for a sprite to use. यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, साउंड फाइल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर इंपोर्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर में से आप जो भी साउंड फाइल्स उसे इंपोर्ट कर सकते हो और स्प्राइट के आवाज़ में उसे मैच कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर यू कैन इंसर्ट दिस साउंड फाइल फॉर योर स्प्राइट। नेक्स्ट कम्स स्क्रिप्ट। A script is a collection of stepwise instructions. Script जो script होता है वो क्या होता है, stepwise collection होता है इन छोटे छोटे कमांड्स का that are given to sprite, जो sprite को दिए जाते हैं किसी भी specific task को पूरा करने के लिए। A script consists of at least 2 blocks. script में आपको 2 blocks जरूर मिलेंगे। Next comes scripts area. So script area is a place where you write the स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एरिया वो जगह है जहां पे आप स्क्रिप्ट को लिखते हैं फॉर द स्प्राइट के लिए। ड्रैग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्लॉक पैलेट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक पैलेट से इंस्ट्रक्शंस को ड्रैग करते हैं और यहाँ पे आके स्क्रिप्ट एरिया में ड्रॉप कर देते हैं एंड देन वी राइट आ प्रोग्राम, और इसी तरीके से हम प्रोग्राम को लिख लेते हैं। द ब्लॉक्स फिट इनटू ईच अदर, ये जो ब्लॉक्स हैं आपस में एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, कैसे, जिक्सॉ पजल की तरह। नेक्स्ट व्यूज फुल स्क्रीन। सो ये जो व्यू फुल स्क्रीन बटन है ये क्या करता है, हमें प्रेजेंटेशन को जो है बिगर स्क्रीन पे मींस फुल स्क्रीन मोड पे दिखाता है। स्प्राइट्स इन्फो पेन, सो इट शोज ऑल द डिटेल्स ऑफ स्प्राइट की जो भी डिटेल्स है उसे वो शो करता है, जो भी बैकड्रॉप यूज किया गया है प्रोजेक्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड इससे दिखाता है। यू कैन ऐड, डिलीट, सी द नेम एंड लोकेशन, हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन को ऐड या फिर डिलीट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं हमारे स्प्राइट के साइज को। सिमिलरली यू कैन ऐड और चेंज द बैकड्रॉप, और इसी तरीके से हम बैकड्रॉप को चेंज या फिर ऐड कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्प्राइट्स नेम, सो दिस इज हाउ यू कैन रीनेम द स्प्राइट। स्प्राइट का नेम हम यहाँ पर डाल सकते हैं जिसमें हम उसे रीनेम भी कर सकते हैं। फिर बी आता है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स एक्सिस में मिलेगा आपको, यहाँ पे वाई एक्सिस में मिलेगा। सो द पोजीशन ऑफ स्प्राइट इज इंडिकेटेड बाय दीज कोऑर्डिनेट्स, जो पोजीशन है स्प्राइट की इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के वजह से ही मिलती है या पता चलती है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज लेबल्ड एज एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस कहा जाता है। Now let's move on to direction. So it includes how the sprite will turn when it executes a move instruction. इसमें क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं कुछ डायरेक्शंस इंक्लूड होते हैं जो बताते हैं कि स्प्राइट को कैसे मूव करना है। सो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट कम्स साइज, यू कैन चेंज द साइज ऑफ द स्प्राइट, आप स्प्राइट के साइज को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। Show, it shows hidden, next comes show, so it shows or hides the sprite from the stage. Stage से जो है आपका जो sprite है उसे ये hide भी कर सकता है और show भी कर सकता है। Next comes sprite list. So here are the characters and objects you have created. जो भी आपने create किए हैं objects को या फिर characters को यहाँ पे वो सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे, including the stage itself. Stage भी आपको यहाँ पे शो होगा। So you have to just click on the icons to edit each sprite individually. हर एक आइकन पे आप क्लिक करके उस स्प्राइट को एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। Next comes new sprite button.
सो देयर आर 4 न्यू स्प्राइट बटन्स टू ऐड अ स्प्राइट। स्प्राइट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको 4 न्यू स्प्राइट बटन मिलेंगे एंड दीज आर, फर्स्ट वन इज चूज अ स्प्राइट। सो यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन पिक वन फ्रॉम स्क्रैच बिल्ट इन लाइब्रेरी। मीन्स स्क्रैच की बिल्ट इन लाइब्रेरी में ऑलरेडी बहुत सारे स्प्राइट्स हैं, तो वहाँ से आप चूज कर सकते हो इस मेथड में। नेक्स्ट इज पेंट। सो यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन ड्रॉ न्यू वन। इस ऑप्शन की वजह से आप नया स्प्राइट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सरप्राइज। यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन ऐड एनी ऑफ द न्यू स्प्राइट फ्रॉम द लाइब्रेरी रैंडमली। सो लाइब्रेरी में से कोई भी स्प्राइट हम रैंडमली यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स अपलोड स्प्राइट। So if by using this option we can upload an image that you have already. So पहले से जो इमेज हमारे कंप्यूटर में सेव है उस इमेज को हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम नया स्प्राइट जो है अपने प्रोग्राम में डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज backdrop button. So it contains the backdrop icon. The backdrop icons are used to change the stage background. ये जो backdrop icon है वो स्टेज के बैकग्राउंड को चेंज कर देता है। स्क्रैच क्या करता है, प्रोवाइड करता है 4 डिफरेंट ऑप्शंस टू चेंज द बैकड्रॉप। स्क्रैच 4 डिफरेंट ऑप्शंस शो करता है बैकड्रॉप को चेंज करने के लिए एंड दीज आर, फर्स्ट वन इज चूज अ बैकड्रॉप। सो यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन चूज अ बैकड्रॉप फ्रॉम द स्क्रैच लाइब्रेरी। स्क्रैच लाइब्रेरी से हम इजिली बैकड्रॉप को चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पेंट। यहाँ पे हम अपने मन के हिसाब से बैकड्रॉप को क्रिएट कर सकते हैं एंड इट ओपन्स द बैकड्रॉप विंडो एडिटर, और यहाँ पे आपको बैकड्रॉप विंडो एडिटर दिखेगा। फिर थर्ड वन इज सरप्राइज। इस ऑप्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नया बैकड्रॉप लाइब्रेरी में रैंडमली। एंड फोर्थ वन इज अपलोड अ बैकड्रॉप। इसमें आप जो है पहले से जो फाइल आपके कंप्यूटर में सेव है उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। So children, go button, it is a green flag and where you can click on it, it runs a scratch program. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो ग्रीन फ्लैग है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो स्क्रैच का जो प्रोग्राम जो भी आपने लिखा है वो रन होने लगेगा। नेक्स्ट कम स्टॉप बटन। ये क्या करता है, आपका जो भी प्रोग्राम है अगर आपको कहीं भी उसे स्टॉप करना है यू कैन क्लिक ऑन दिस रेड बटन। नेक्स्ट ऐड एक्सटेंशन ऑप्शन। Scratch extensions are the extra set of blocks that can be added to the main Scratch page. Scratch के जो extension है ये क्या है, extra set of blocks हैं जिन्हें हम add कर सकते हैं अपने main Scratch page पे to extend the scope of the Scratch editor. Scratch editor के scope को extend करने के लिए new extensions can be added over time to improve the existing Scratch. नए नए एक्सटेंशंस को हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे टाइम टू टाइम इम्प्रूव करने के लिए जो भी हमारा एग्जिस्टिंग स्क्रैच प्रोजेक्ट है। स्क्रैच एक्सटेंशंस अलाउ प्रोग्रामर्स टू मेक द स्क्रैच प्रोग्राम कम्युनिकेट। ये जो स्क्रैच का एक्सटेंशन है वो हेल्प करता है प्रोग्रामर्स को नए प्रोग्राम बनाने में, कम्युनिकेट करने में उनके साथ ऑनलाइन एंड टू इंसर्ट एक्सटर्नल हार्डवेयर। There are total of 11 extensions available in Scratch. Scratch में आपको total 11 extensions मिलेंगे। Next, let's learn about the looks block. So this looks block palette in Scratch has instructions to change the look or the appearance of the sprite. आपके जो भी sprite है उसके appearance को ये change कर देता है, कैसा वो दिखता है उसे change कर देता है। So let's learn about the different blocks of look block. So here comes the different types of blocks. These are the different types of blocks in the looks block category and these are the descriptions related to it. So say hello for 2 seconds. So जब हम ये command type करेंगे तो क्या होगा, a speech bubble or sprite appears. Sprite के सामने एक speech bubble आ जाएगा जिसमें जो है एक specific time duration दिया रहेगा, उसके according जो भी हम command देंगे वो sprite बोलेगा। नेक्स्ट है से हेलो। यहाँ पे भी एक स्पीच बबल आ जाएगा, हेलो जिसमें लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आता है थिंक फॉर 2 seconds। अगेन ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, स्प्राइट को ऐसे थिंक वाला इमोजी बनाएगा, थिंक वाले बबल्स बनाएगा यहाँ पे एंड उसमें जो टेक्स्ट होगा वो होगा नेक्स्ट है थिंक A thought bubble with a specific text appears for the sprite. यहाँ पे thought bubble आ जाएगा जिसमें सोचते हैं क्लाउड्स बने रहते हैं और वो बॉल्स से बने रहते हैं। सो ऐसा thought bubble आ जाएगा जिसमें
जो मेंशन टेक्स्ट है वो लिखा होगा। नेक्स्ट है स्विच कॉस्ट्यूम टू, कॉस्ट्यूम टू, यहाँ पे हमने कॉस्ट्यूम को चेंज किया है तो कॉस्ट्यूम टू हमने अप्लाई किया है। सो इसको करने ही क्या होगा, जो कॉस्ट्यूम है स्प्राइट का वो चेंज होकर कॉस्ट्यूम टू तक चला जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। सो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे या ये ऑप्शन देंगे स्प्राइट को तो वो क्या करेगा, अगला जो भी कॉस्ट्यूम है उसे अप्लाई कर लेगा। फिर आता है स्विच बैकड्रॉप, यहाँ पे अब हम बैकड्रॉप को स्विच कर सकते हैं, तो हम अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं आपके स्टेज के इस को डाल के, इस स्लाइड को यूज करके। नेक्स्ट है नेक्स्ट बैकड्रॉप, सो इट विल स्विच द नेक्स्ट बैकड्रॉप इन द लिस्ट, लिस्ट में जो नेक्स्ट बैकड्रॉप है उसे स्टार्ट कर देगा। चेंज साइज बाय 10, सो द साइज ऑफ द स्प्राइट चेंजेस बाय द स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे जो साइज है स्प्राइट का वो चेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सेट साइज टू 100%, यहाँ पे अगर हमने ये कर दिया तो क्या होगा, जो स्प्राइट का जो साइज है वो 100% हो जाएगा, मीन्स अपने ओरिजिनल साइज में चला जाएगा, अपने ओरिजिनल साइज का 100% हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, सो हियर द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट चेंजेस, जो अपीयरेंस है स्प्राइट का वो चेंज हो जाएगा एंड द स्पेसिफाइड विजुअल इफेक्ट बाय द मेंशन्ड अमाउंट, और जो स्पेसिफाइड विजुअल इफेक्ट है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। फिर है सेट कलर इफेक्ट टू 0, यहाँ पे जो विजुअल इफेक्ट है स्प्राइट का वो जो है सेट हो जाएगा एक स्पेसिफिक अमाउंट पे। सो दीज आर द डिफरेंट ब्लॉक्स दैट वी कैन यूज इन द लुक्स ब्लॉक। नेक्स्ट कम्स क्लियर ग्राफिक इफेक्ट, ये क्या करता है, ग्राफिक इफेक्ट्स को क्लियर कर देता है। फिर आता है शो, ये क्या करता है, इफ द स्प्राइट इज हिडन, अगर आपका स्प्राइट जो है छुपा हुआ है तो ये आपके स्प्राइट को स्क्रीन पे ले आएगा, शो करेगा। बट इफ द स्प्राइट इज ऑन द स्टेज नो इफेक्ट विल बी सीन, लेकिन अगर स्प्राइट पहले से ही स्टेज पे है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। फिर सिमिलरली हाइड इफेक्ट में क्या होगा, हाइड में जो है अगर स्प्राइट आपके स्क्रीन पे है तो वो हाइड हो जाएगा। एंड इफ द स्प्राइट इज ऑलरेडी हिडन, अगर स्प्राइट पहले से ही हिडन है तो कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है गो टू फ्रंट लेयर, सो इट मूव्स द स्प्राइट टू द फ्रंट और बैक लेयर, ये क्या करता है स्प्राइट को फ्रंट या फिर बैक लेयर तक ले जाता है। नेक्स्ट है गो फॉरवर्ड 1 लेयर, ये क्या करता है मूव कर देता है आपके स्प्राइट को कहाँ पे, जो भी स्पेसिफाइड नंबर हैं, जितने भी नंबर ऑफ लेयर्स हैं उतने स्टेप्स वो जो है फॉरवर्ड मूव करता है आपके स्प्राइट को। फिर आता है कॉस्ट्यूम नंबर, सो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट्यूम है उसके नंबर के अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। रिपोर्ट द करेंट कॉस्ट्यूम नंबर, जो कॉस्ट्यूम नंबर है वो शो करेगा यहाँ पे। फिर है बैकड्रॉप नंबर, इट विल रिपोर्ट द करेंट बैकड्रॉप नंबर, जो भी करेंट बैकड्रॉप नंबर है वो यहाँ पे शो होगा। देन कम्स द साइज, इट्स रिपोर्ट्स द साइज ऑफ द स्प्राइट एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल साइज, मीन्स जो भी साइज है उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे शो होगा इस ब्लॉक में। So now children, the next is event block. So event block help us to sense data which triggers the script to run. Let's learn about the different blocks of events category. So चलिए अलग अलग जो भी blocks हैं event category के वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं about them. So here the first is when flag clicked. So जब flag पे click करेंगे तो sprite क्या करेगा, it will, the script will run whenever this flag is clicked. When space key pressed, so it runs the script below when a specified key is pressed. So जब भी कोई specified key है यहाँ पे जो भी उसके नीचे का जो भी script है वो जो है play होने लगेगा। When this sprite clicked, so it runs the script below when the sprite is clicked. When this sprite is clicked वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे वाले स्क्रिप्ट को ये रन करने लगेगा। When backdrop switches to backdrop 1, so it will run the script below the backdrop changes to specified backdrop. So ये जो specified backdrop है इसके नीचे के जितने भी कमांड्स है वो रन होने लगेंगे after this command. So children, next is when loudness, and here you can see 10 is written. So what it will do, it will run the script, run करेगा ये script को below when loudness और timer और video motion exceed the specific number. जब ये जो है दिए गए नंबर से exceed होने लगेगा तो ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट को रन करने लगेगा। नेक्स्ट है when I receive message 1.
सो यहाँ पे क्या होगा, इट विल रन द स्क्रिप्ट बिलो व्हेन इट रिसीव्स अ स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट मैसेज। जब उसे एक स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलेगा तो स्प्राइट को रन करेगा। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट मैसेज। दिस इज ब्रॉडकास्ट मैसेज 1। सो इट विल सेंड द मैसेज टू ऑल द स्प्राइट्स। ये क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा जितने भी स्प्राइट्स हैं उनको। देन कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट ब्लॉक विदाउट वेटिंग फॉर द ट्रिगर ऑफ आवर स्क्रिप्ट। तो ये जो है आप जो है आगे के स्क्रिप्ट को कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्ट मैसेज 1 एंड वेट। सो इट विल सेंड अ मैसेज टू ऑल द स्प्राइट्स। ये सारे जो भी मैसेज स्प्राइट्स हैं उनको मैसेज देगा। ट्रिगर देम टू डू समथिंग, उन्हें हेल्प करेगा कुछ करने में। एंड वेट अंटिल दे ऑल फिनिश, और तब तक वेट करेगा जब तक सब अपना काम फिनिश ना कर दें, बिफोर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट ब्लॉक, नेक्स्ट ब्लॉक के कंटिन्यू करने से पहले। नेक्स्ट कम्स कंट्रोल ब्लॉक्स। सो कंट्रोल ब्लॉक गिव्स इंस्ट्रक्शंस, helps to decide when and how to execute part of the script. So ये जो कंट्रोल ब्लॉक है ये हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि कब और कैसे जो है पार्ट जो भी स्क्रिप्ट का है उसे एग्जीक्यूट किया जाए। लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ द कंट्रोल ब्लॉक। तो चलिए पढ़ते हैं अलग अलग जो भी ब्लॉक्स है कंट्रोल ब्लॉक के उनके बारे में। सो हियर दीज आर द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कंट्रोल ब्लॉक एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन। सो वेट 1 सेकेंड का जब हम कमांड देते हैं, सो व्हाट विल हैपन, इट द स्प्राइट विल वेट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेकेंड। जो भी नंबर ऑफ सेकेंड्स वहाँ पे मेंशन होंगे उतने नंबर ऑफ सेकेंड्स के लिए स्प्राइट जो रुक जाएगा एंड देन इट विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट ब्लॉक। नेक्स्ट इज रिपीट 10। सो वट एवर नंबर इज रिटन देयर, द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स द ब्लॉक्स विल बी रिपीटेड। नेक्स्ट इज फॉर एवर। सो अब जो है फॉर एवर ब्लॉक में अगर हमने कुछ भी डाल दिया है, इट मीन्स वट एवर इज इनसाइड दिस फॉर एवर ब्लॉक दैट विल रन ऑन एंड ऑन, मीन्स वो लगातार चलता ही रहेगा। नेक्स्ट इज देन ब्लॉक, इफ देन ब्लॉक। सो इफ देन ब्लॉक इज यूज, इफ कंडीशन इज ट्रू रन्स द ब्लॉक इनसाइड। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक जो है रन होने लगेंगे। नेक्स्ट है इफ देन एल्स ब्लॉक। सो इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है देन इट विल रन द ब्लॉक इनसाइड इट, अपने अंदर के जो भी ब्लॉक्स है उसे रन करेगा। एंड इफ नॉट, अगर कंडीशन फॉल्स है, सो इट विल रन द ब्लॉक इनसाइड द एल्स पोर्शन। तो ये क्या करेगा, एल्स पोर्शन के अंदर जो भी ब्लॉक है उसे रन करेगा। नेक्स्ट है वेट अंटिल। सो वेट अंटिल कंडीशन क्या करता है, इट इज अ ट्रू कंडीशन देन रन्स द ब्लॉक बिलो, और उसके बाद जो है जो भी ब्लॉक है उसके नीचे उसे रन करने लगेगा। फिर है रिपीट अंटिल। सो इट चेक्स टू सी इफ कंडीशन इज फॉल्स, ये देखता है कि कंडीशन फॉल्स है या नहीं। इफ सो, अगर ऐसा है, सो रन ब्लॉक इनसाइड एंड चेक्स कंडीशन अगेन। ये क्या करेगा, रन करेगा ब्लॉक्स को अंदर एंड कंडीशन को फिर से चेक करेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, इट गोज ऑन द ब्लॉक्स टू फॉलो। ये क्या करेगा, ब्लॉक पे चला जाएगा फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट इज स्टॉप ऑल। सो इट विल स्टॉप ऑल द स्क्रिप्ट्स ऑफ द दैट इज गिवन इन द टू द स्प्राइट। नेक्स्ट इज व्हेन आई वन स्टार्ट एज अ क्लोन। सो व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन मीन्स इट विल एक्टिवेट when a clone is created। ये तब स्टार्ट होगा जब उस स्प्राइट का एक क्लोन क्रिएट किया गया हो। यहाँ पे इट ओनली रन्स इन द न्यूली क्रिएटेड क्लोन। ये जो है सिर्फ नए क्रिएटेड क्लोन पे ही वर्क करता है, नॉट प्रीवियस क्लोन्स और द पेरेंट, ना कि पुराने क्लोन्स पे। फिर एक क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, इट क्लोन्स द स्प्राइट इट रन्स इन। जो भी स्प्राइट रन कर रहा है उसका वो क्लोन कर देगा। Next is delete the clone, so it will delete the clone that was running in. Next है adding a new sprite from library. So how can we add a new sprite? So cat is a default sprite, ये एक default sprite है, but we can insert a new sprite। लेकिन हम नए sprite को insert कर सकते हैं। There are 4 new sprite buttons to add a sprite। Sprite को add करने के लिए 4 new sprite buttons हैं। पहला है choose a sprite, so we can choose the sprites that are already in the built-in library of the Scratch.
सो स्क्रैच के बिल्ट इन लाइब्रेरी में पहले से कुछ स्प्राइट्स हैं, उनमें से आप चूज कर सकते हो फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है पेंट, यू कैन पेंट योर ओन न्यू स्प्राइट। नेक्स्ट आता है आपका सरप्राइज, यूजिंग दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन को यूज करके आप किसी भी नए स्प्राइट को यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी में से रैंडमली। एंड द लास्ट वन इज अपलोड स्प्राइट, इस ऑप्शन को यूज करके आप जो है अपलोड कर सकते हैं इमेज किसी भी पहले से रखे या सेव किए गए स्प्राइट का। टू ऐड अ न्यू स्प्राइट वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। न्यू स्प्राइट को आपको ऐड अगर करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द चूज अ स्प्राइट बटन। यहाँ पे चूज अ स्प्राइट बटन है, इस पे हमें क्लिक करना है। अ विंडो अपीयर्स कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ स्प्राइट्स, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इतने सारे स्प्राइट्स आपके सामने आ जाएंगे। सेलेक्ट अ स्प्राइट, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट क्रैब, तो हमने इसमें से ये क्रैब जो ऑप्शन है इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा स्प्राइट है। द स्प्राइट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, और अब ये स्प्राइट हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। And here also you can see sprite 1 and crab both are present. Now delete the existing sprite or default sprite. अब हमें जब पुरानी जो sprite थी उसे delete करना है। So to delete it follow these steps. कैसे delete करेंगे cat वाले sprite को? First select the default sprite of the in the sprite list. Sprite list में जाएंगे हम and वहाँ पे जाके हम उसे select करेंगे। Now click on the icon present top right corner of the sprite. स्प्राइट के टॉप राइट कॉर्नर में आपको डिलीट बटन दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। एंड यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट बाय चेंजिंग इट्स कॉस्ट्यूम। सो यहाँ से स्प्राइट डिलीट हो जाएगा। अब हमें कॉस्ट्यूम चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं कॉस्ट्यूम्स में जाके। यू कैन सी द डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स ऑफ योर स्प्राइट बाय क्लिकिंग द कॉस्ट्यूम टैब। सो कॉस्ट्यूम टैब पे आप जाके, दिस इज अ कॉस्ट्यूम टैब, वहां जाके आप जो इस कॉस्ट्यूम को देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड इट विल चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट एंड दीज आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो हियर। फर्स्ट इज डिलीट द एग्जिस्टिंग स्प्राइट एंड ऐड अ न्यू स्प्राइट से बियर। अब हमने एग्जिस्टिंग स्प्राइट को डिलीट करके हमने नया स्प्राइट लिया है बियर। नाउ क्लिक ऑन द कॉस्ट्यूम टैब, अब हम चले गए कॉस्ट्यूम टैब पे और आप देख सकते हो बियर का कैसे हमने कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया है। नोटिस द डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स अंडर द कॉस्ट्यूम लिस्ट, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स आपको मिल जाएंगे कॉस्ट्यूम लिस्ट में। यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एडिट इट यूजिंग द डिफरेंट टूल्स, बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, उसकी मदद से आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। दीज टूल्स आर अवेलेबल इन द विंडो। नाउ सेलेक्ट द कोड टैब, अब हम जाएंगे कोड टैब पे एंड क्रिएट द फॉलोइंग स्क्रिप्ट फॉर द स्प्राइट। सो अब हम वापस से कोड टैब पे गए, वहां पे जाके ये सारे जो है हमने ब्लॉक्स को चूज किया एंड व्हेन और इसके बाद हमारा जो स्प्राइट है वो वर्क करना शुरू कर देगा। तो हमने क्या कहा, हमने जो पहले ग्रीन, जैसे हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे सो स्प्राइट क्या करेगा, मूव करेगा 10 स्टेप्स, देन द कलर विल चेंज इफेक्ट बाय 25 एंड देन नेक्स्ट कॉस्ट्यूम विल कम। सो ये यू कैन सी जैसे हमने ये सारी चीजें डाली तो इट्स color also changed and next costume is alive and it has also moved 10 steps. Next is adding a new backdrop. अब नया backdrop, नया background आपको लगाना है तो आपको उसे कैसे लगाना है, this we will learn here. So children, as a sprite you can change the background of the stage. जैसे हम sprite को change कर सकते हैं वैसे background को भी change कर सकते हैं। एंड द बैकड्रॉप बटन कंसिस्ट ऑफ बैकड्रॉप ऑप्शन, यहाँ पे आपको बैकड्रॉप ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप जाके चूज कर सकते हैं। ये जो आइकन है इसे यूज किया जा सकता है स्टेज के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। स्क्रैच क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है 4 डिफरेंट ऑप्शन, 4 डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है चेंज करने के लिए बैकड्रॉप को। फर्स्ट इज चूज अ बैकड्रॉप, तो आप जो ऑलरेडी बिल्ट इन बैकड्रॉप है वहां से आप जो है चूज कर सकते हो एक बैकड्रॉप। नेक्स्ट है पेंट, आप अपना खुद का बैकड्रॉप पेंट कर सकते हो बैकड्रॉप विंडो एडिटर में जाके। फिर है सरप्राइज, यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज करके आप किसी भी रैंडमली किसी भी बैकड्रॉप को पिक कर सकते हो, कभी भी पिक कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज अपलोड अ बैकड्रॉप, यहाँ पे आप जाके जो है ये जो 4 ऑप्शन है यहाँ पे आप जाके जो है एक नया बैकड्रॉप जो अपलोड कर सकते हो जो ऑलरेडी फाइल आपके
कंप्यूटर या फिर सिस्टम में है। So children, to do all these we have to follow these steps. First we have to click on the choose a backdrop button. हमें जो जाना है choose a backdrop button पे, here you can see it's there. अब इसको जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, these are the backdrops that are open in front of us. इनमें से हम कोई भी backdrop choose कर सकते हैं। A window will appear which will contain various backdrops. एक विंडो हमारे सामने आएगा जिसमें बहुत सारे बैकड्रॉप्स होंगे, उसमें से हम कोई भी बैकड्रॉप चूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने फॉरेस्ट का बैकड्रॉप यहाँ पे चूज किया है। द सेलेक्टेड बैकड्रॉप विल बी सेट एज अ बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज, और जो भी हमें बैकड्रॉप डाला वो हमारा बैकग्राउंड बन जाएगा स्टेज का। नेक्स्ट इज मेकिंग अ स्प्राइट से समथिंग। अब स्प्राइट को हमने क्रिएट कर दिया, उसके कॉस्ट्यूम चेंज कर दिए, उसका बैकड्रॉप चेंज कर दिया, अब हम उससे कुछ बातें करवा लेते हैं। सो मेकिंग अ स्प्राइट से समथिंग मीन्स उससे कुछ बोलना सिखाते हैं। सो स्प्राइट कैन से अ वर्ड और सेंटेंस इन द स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्क्रैच के प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्प्राइट है वो कोई वर्ड या फिर सेंटेंस भी बोल सकता है। यू कैन मेक योर स्प्राइट स्पीक लाइक अ कैरेक्टर इन अ कॉमिक स्ट्रिप। जैसे कॉमिक्स में जो कैरेक्टर्स बोलते हैं वैसे हम भी अपने कैरेक्टर को, हम भी अपने स्प्राइट को बुलवा सकते हैं। सो लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट। सो पहले हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है लुक्स ब्लॉक कैटेगरी पे जाना है, ब्लॉक मेन्यू में, वहां से हमें से हेलो ब्लॉक को ड्रैग करना है स्क्रिप्ट एरिया पे। अब हमें जाना है कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी में एंड वहां पे जाके हमें वेट 1 सेकेंड, जो ब्लॉक है उसे जो है हमें स्क्रिप्ट एरिया में लाना है। नेक्स्ट है अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन द लुक्स ब्लॉक, फिर से हमें लुक्स ब्लॉक पे जाना है और वहां से हेलो फॉर 2 सेकेंड ऑप्शन पे जाके हमें उस ब्लॉक को हमें ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में लाना है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू टाइप अ मैसेज, हमें मैसेज टाइप करना है हाउ आर यू। सो हाउ आर यू हमने टाइप कर दिया और 2 सेकेंड तक स्प्राइट को बोलना है ये। नाउ वी हैव टू ड्रैग से हेलो। अब से हेलो ब्लॉक को हमें स्क्रिप्ट एरिया में लाना है एंड यहाँ पे हमें जो है टाइप करना है मैसेज आई एम फाइन। सो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया आई एम फाइन। नाउ क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक टू रन द ब्लॉक स्टैक। किसी भी ब्लॉक पे आप क्लिक कर सकते हैं इन सारे ब्लॉक्स को रन करने के लिए। तो आप देख सकते हो हेलो लिखा है, फिर 1 सेकेंड रुकना है, फिर से हाउ आर यू फॉर 2 सेकेंड्स एंड देन से आई एम फाइन। सो जब हमने इन सारी चीज़ों को डाला तो वी कैन सी दैट यहाँ पे एक बबल आ गया है एंड उसमें जो स्प्राइट बोल रहा है आई एम फाइन। Now how to make duplicate copy of sprite। अब sprite को हमने बोलना भी सिखा दिया, अब हम उस sprite की duplicate copy बनाएंगे जिसमें ये दोनों sprites आपस में बात करेंगे। So let's make a duplicate copy of the sprite। Here we have to click on the pen block। तो हमें जाना है पहले pen block category पे in the blocks menu and यहाँ से हमें drag करना है stamp block को। अब हम यहाँ से स्टैम्प ब्लॉक को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे ऑन द स्क्रिप्ट एरिया पे एंड देन क्लिक एंड ड्रैग द पेन डाउन। पेन डाउन बटन को हमें जो है क्लिक करना है क्योंकि पेन नीचे करेंगे तो अभी तो हम लिखेंगे। सो वी हैव टू क्लिक एंड ड्रैग द पेन डाउन, देन वी हैव टू सेट द पेन साइज। पेन का साइज सेट करना है एंड पेन का कलर वी कैन चेंज एंड दीज ऑल थिंग्स वी कैन चेंज हियर। नाउ क्लिक ऑन द मोशन ब्लॉक कैटेगरी। अब हम मोशन ब्लॉक कैटेगरी पे जाएंगे ब्लॉक मेन्यू में एंड यहाँ से हमें ड्रैग करना है मूव 10 स्टेप्स वाले ब्लॉक को एंड यहाँ पे वैल्यू हमें 10 से 50 कर देना है एंड देन हमें क्लिक करना है और ड्रैग करना है इफ ऑन एज बाउंस बटन को। ये ब्लॉक हम यहाँ पे ला के ड्रैग करके यहाँ पे स्क्रिप्ट एरिया में डाल देंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया टू रन द ब्लॉक स्टैक। सो किसी भी ब्लॉक पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड द ब्लॉक्स विल रन। तो आप देख सकते हो अलग अलग जो है आप कितने सारे स्प्राइट्स आपके सामने आ गए विथ डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट वर्किंग विथ 2 स्प्राइट्स। 2 स्प्राइट्स के साथ कैसे काम करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट जहाँ पे हम 2 स्प्राइट्स को वर्क करा रहे हैं। सो फॉर क्रिएटिंग अ सीन गिवन बिलो एंड क्लिक ऑन द चूज स्प्राइट ऑप्शन। हमें क्रिएट करना है ये जो सीन यहाँ पे दिख रहा है वो, उसके लिए हम जाएंगे चूज स्प्राइट ऑप्शन पे, देन चूज द स्प्राइट गैलरी। यहाँ पे चूज द स्प्राइट गैलरी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके स्प्राइट एबी को चूज करना है पीपल कैटेगरी में से। तो पीपल कैटेगरी में से हमने एबी को यहाँ पे चूज कर लिया है।
सो एबी को चूज करने के बाद अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन द चूज द स्प्राइट ऑप्शन। अब हमें चूज द स्प्राइट ऑप्शन पे फिर से जाना है एंड ऐड रूबी स्प्राइट फ्रॉम द पीपल कैटेगरी। अब पीपल कैटेगरी में से हमें रूबी को चूज करना है एंड देन वी हैव टू चूज द स्प्राइट गैलरी। नाउ आप देख सकते हो एबी और रूबी दोनों को हमने यहाँ पे चूज कर लिया। सेलेक्ट द स्प्राइट वन बाय वन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग ब्लॉक्स टैग। तो जो भी स्प्राइट हमें चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड हम ब्लॉक्स लिखेंगे, फिर अगले स्प्राइट को सेलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड ब्लॉक्स लिखेंगे एंड देन वी कैन रन द ब्लॉक्स। नाउ चेंजिंग द स्प्राइट पोजिशन। अब स्प्राइट के पोजिशन को कैसे चेंज करना है? सो लुक एट द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड में आप देख सकते हो एक फिगर दी गई है। हियर यू कैन कंसिडर देयर इज अ स्क्रैच स्टेज। ये आपका स्क्रैच का स्टेज है। What do you observe? आपको क्या दिखाई दे रहा है? The stage is divided into 4 squares. आपका जो स्टेज है वो 4 squares में divided है by a horizontal line and a vertical line and these are also numbered. तो यहाँ पे आपको horizontal और vertical lines दिखेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे numbers भी लिखे हुए हैं। The scratch is 480 pixels wide. जो scratch है वो 480 pixel wide होता है and 360 पिक्सल हाई और 360 पिक्सल हाई होता है। एवरीथिंग इज ऑन द ग्रिड विथ 2 एक्सिस। जो भी चीज है वो ग्रिड पे होता है इन एक्सिस पे। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज अ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट मेक्स लेफ्ट एंड राइट। ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेफ्ट और राइट दोनों बनाता है एंड इट रेंजेस फ्रॉम -240 टू +240। नेक्स्ट आता है वाई एक्सिस जो टॉप से बॉटम तक आता है विथ मार्क्स फ्रॉम अप एंड डाउन एंड हियर यू कैन सी द रेंज इज -180 टू +180। सो द डिफॉल्ट पोजिशन ऑफ स्प्राइट इज एट द पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस मीट। तो हमारे जो स्प्राइट की जो पोजिशन होती है वो यहाँ होती है बीच में जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं एंड इट इज x is equal to 0 and y is equal to 0. As you move the right from the origin, the x value जैसे जैसे मूव करते हैं राइट की तरफ तो जो x की वैल्यू है इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है उसके अकॉर्डिंग। सो द वैल्यू ऑफ x विल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 240। तो x की वैल्यू 0 से 240 तक इंक्रीज हो जाएगी। एज यू मूव लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो x की वैल्यू जो चेंज हो जाएगी 0 से 240 तक। सिमिलरली अगर हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं y एक्सिस पे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा वैल्यू को 0 से 180 तक। एंड सिमिलरली अगर हम जो है मूव कर रहे हैं डाउन नीचे की तरफ तो क्या होगा, y की वैल्यू 0 से -180 डिग्री तक आ जाएगी। नाउ लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट टू चेंज द स्प्राइट्स पोजीशन। तो चलिए जल्दी से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम स्प्राइट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रैग द फॉलोइंग कमांड एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। तो यहाँ पे ये कमांड्स हमें ड्रैग करने हैं इन सारे ब्लॉक्स में से। व्हेन क्लिक्ड फॉरएवर में मूव -100 स्टेप्स, वेट 1 सेकेंड, सेट x to 80, चेंज साइज बाय 10, चेंज कलर, इफेक्ट बाय 25, फिर वेट 1 सेकेंड, set y to 100, change size by 10, change color, effect by 25, wait 1 second again, go to x 110 and y 60. So these all commands we have to type and then we have to press this green flag button. So जैसे हमने click किया, this sprite will change its location. Next is changing the pen shade. pen का shade कैसे change कर सकते हैं? So as the sprite moves on the stage, pen blocks is used to draw a trail. So जैसे जैसे sprite move करता है स्टेज पे pen block को यूज किया जाता है ट्रेल को ड्रॉ करने के लिए। Each pen color has different shades. हर एक पेन कलर में आपको अलग अलग शेड मिलेंगे जो वेरी करते हैं 0 से लेके 100 तक, मीन्स हल्के से लेके हाईएस्ट तक। 0 is the lightest and 1 is the highest shade. 0 जो है सबसे हल्का शेड है और 1 सबसे हाईएस्ट शेड है। लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो चलिए जल्दी से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो वी आर हियर वी हैव टू क्रिएट अ सीन गिवन बिलो। यहाँ पे हमें नाइट सीन क्रिएट करना है, स्टार्स वगैरह इसमें डालने हैं। तो स्टार हमारा स्प्राइट है यहाँ पे। सो वी हैव टू क्रिएट दिस सीन। वी हैव टू क्लिक ऑन द ऐड एक्सटेंशन बटन। हमें ऐड एक्सटेंशन बटन पे क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द पेन कैटेगरी, और वहां से जाके हमें पेन कैटेगरी को
चूज करना है. सो दिस इज अ पेन कैटेगरी. ड्रैग एंड ड्रॉप द फॉलोइंग ब्लॉक्स फ्रॉम द पेन कैटेगरी. हमें क्या करना है, ड्रैग और ड्रॉप करना है इन सारे ब्लॉक्स को पेन कैटेगरी में से. आप देख सकते हो आपके सामने. नाउ सेलेक्ट द मोशन कैटेगरी एंड ड्रैग द फॉलोइंग ब्लॉक. अब हमें मोशन कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है इन सारे ब्लॉक्स को. नाउ सेलेक्ट द डैश दिस ब्लॉक फ्रॉम द कंट्रोल कैटेगरी. अब ये जो रिपीट 10 ब्लॉक है इसे हमें कंट्रोल कैटेगरी में से सिलेक्ट करना है एंड प्लेस इट ओवर द स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट पे उसे लगा देना है. सिमिलरली ड्रैग एंड ड्रॉप द फॉलोइंग ब्लॉक. अब हमें क्या करना है, ये जो दिए गए ब्लॉक्स हैं इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड फाइनली क्लिक ऑन एनी ब्लॉक टू ऑब्जर्व द रिजल्ट. किसी भी ब्लॉक पे क्लिक कर देंगे. सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट. नाउ दिस वाज द चैप्टर चिल्ड्रन. लेट्स मूव ऑन टू लेट्स रिकॉल. Scratch is a powerful tool for introducing young learners to programming and computing thinking in a fun and engaging way. Scratch is a free software. Scratch is a simple block-based coding language that lets you create your own interactive stories, animations, games, music and art. And it's easy to learn and use. The backdrop icon are used to change the stage background. Scratch provides 4 different options to change the backdrop of the stage. The default position of sprite is at the point where the x-axis and y-axis meet the origin. X is equal to 0 and y is equal to 0. As the sprite moves on the stage, pen blocks is used to draw a trail, and each pen color has different shade that varies from 0 to 100. That is 0 is the lightest and 1 is the highest shade. Now let's quickly move on to book exercise and here this is exercise time of your book. A exercise is take the correct option. So here children, the first one is which of the following blocks belong to control category. Control category के कौन से block हैं? Is it A, B, C or D? So it is B block. Next, which of the following blocks belong to looks category? Looks category का कौन सा block है? Is it A? Is it B? Is it C or is it D? So it is C block. So do the rest of the questions yourself. Now let's move on to fill in the blanks. B exercise of your book. So here children, the first question is the view full screen button is also known as presentation button. Second one, the default position of sprite is at the point where the x and y axis meet and it's called origin. Third one is the scratch is 480 pixels wide and 360 pixels high. Rest of the questions are your homework, do it yourself. Next comes C exercise, write true or false for the following statements. Scratch is a free software. This is true. Second one, control blocks are used to manage the event which trigger the movement of the sprite. This one is false. So children, this was all for today and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.